नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन पेशा वॉइस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक विशेष रिपोर्ट न्यू जर्सी गवर्नर द्वारा आयोजित किए गए दीपोत्सव पर। आप देखेंगे वैष्णो टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क से अन्नकूट महोत्सव की झांकियां और गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी बताएंगी आने वाली दीपोत्सव के क्रम में आयोजित होने वाले एक शास्त्रीय कार्यक्रम के बारे में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन पेशा वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गवर्नर फिल मर्फी और फर्स्ट लेडी द्वारा मनाए गए दीप उत्सव पर इन झलकियों के साथ। भारतीय समुदाय के गणमान्य अतिथि उपस्थित होने के साथ साथ न्यू जर्सी के जो राजनीतिक प्रतिनिधि करने वाले सदस्य हैं वो भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विशेष करके जो इस कार्यक्रम से भाव बना उसके बारे में न्यू जर्सी के गवर्नर ने ट्वीट करते हुए कुछ इस तरह की बात कही कि इस दीप उत्सव से उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि न्यू जर्सी अंधकार की अपेक्षा प्रकाश को महत्व देने वाला स्थान है और यहाँ पर अच्छाई की सदैव बुराई पर विजय हो, ये कटिबद्धता भी बनी हुई है। तो आइए देखें इस विशेष अनूठे दीपोत्सव की कुछ झलकियाँ जिसका आयोजन किया न्यू जर्सी गवर्नर फिल मर्फी ने। It's impossible to celebrate Diwali in New Jersey without briefly acknowledging the South Asian community, our immigrant community, our contributions and our growing presence in this beautifully and richly diverse state, and acknowledge what our hosts have done to further our immigrant community and make our lives better. Our governor appointed the first ever Indian American chief counsel, and he's here, Parliament Garg. My mom wants me to grow up to be like Paramount. The first ever Indian American Attorney General, the first ever Indian American CEO of Choose New Jersey. He's elevated more South Asians to the judiciary than any governor in New Jersey's history. He signed into law and created the AAPI Heritage Commission. He signed into law and ensured that in our K through 12 schools, the Asian American contribution to American history will be a mandatory part of the curriculum to fight intolerance since childhood. He signed into law driver's licenses for all New Jerseyans regardless of immigration status. He ensured by signing into law that occupational licenses and professional licenses to fill critical shortages in these occupations would be without regard to immigration status. And wishing you a happy and prosperous Diwali, Bandi Chua Divas for our Sikh sisters and brothers. And as Raj and Tammy have both pointed out, this is all about good versus evil, light over darkness, knowledge over ignorance, being on the right side of history. And the South Asian community in this country and certainly in this state and frankly in the world writ large. By the way, Rishi Sunak is another recovering Goldman Sachs banker. Can't make that up. He is about 8 decades younger than I am, so he was not there when I was there. But I did not mention hope over despair, but that to me is another big element of this holiday. Both Raj and Tammy mentioned this. We have among the largest South Asian populations of any state in America. Ron Rios was supposed to be here. Ron, are you here? I don't see you. Ron is the, are you Ron? Santinaro is here. Santinaro is here. Santi, to you and Ron, if he's not here.
Middlesex County has the hi Santi. Nice to see you. Please don't jump. Middlesex County has, for sure, per capita, the highest concentration of South Asian residents of any county in America. And I think it is battling for number one of just pure raw numbers. And when you combine our diversity as a state with our density, we're the most densely populated state in America, I think it says a lot to the character and tolerance of our state relative to other American states. We literally live on top of each other. We have no choice but to walk in the other person's shoes. And I think that contributes mightily to who we are as a state, as I said, to the strength of character, to the overwhelming tolerance you find in New Jersey. It doesn't mean there aren't bad apples, because unfortunately there are. But I would take our state over any other American state. And I speak to the community when I say thank you for everything you do in our state, whether it's in commerce, education, culture, elected office, appointed positions. We are the most diverse administration in the history of our state. Raj went through a number of examples from the South Asian community. We wear that as a badge of honor, and we can be no less than that. After all, if you have a state as diverse as ours is, the very least we can do is put a team on the field that reflects that diversity. Yes. Amen. And that will only become more and more so in the years ahead. So thank you for everything you do for our great state. Thank you for coming out to Drumthwacket. How great is it to have people actually physically together for Diwali? Once again, we haven't done this in a few years because of the awful pandemic. Thank you to each and every one of you. Saal Mubarak. We call Drumthwacket the People's House, and we firmly believe that it is your house and your home. And without having everyone here these past several years, it's been really painful for us, on obviously all of us on so many levels, but we're really thrilled to have you all back here. So welcome back. And I want to give a big shout out to the staff who helped us all get here, whether they are Advance or Legislative Affairs or IGA, and of course the incredible team here at Drumthwacket who has enabled us all to gather again this evening. You know, I have always, as Raj just pointed out, we did make a mission to India in 2019, and it reminded me of the time I was in India before that, which, can you believe, was in 1989. Wow. And Not with me. I was waiting for you. I don't know where you were. I'm clearly lost. But what I wanted to say is this is such a beautiful occasion. I mean, the Festival of Lights, the colors, I mean, all of the beautiful colors we're seeing here right now. And I'm going to try some more and tell me if I get this right. But it is a time, whether it is artful rangolis laid across family room floors, the lit diyas throughout homes, or the fireworks, I can say that, in the night sky. But truly, you know, we are all better when we are celebrating our diversity and learning from one another. As you can tell, I like getting dressed up and enjoying everything that you all have. You all look so beautiful out there, so thank you for letting me enjoy that too. You're looking beautiful too. Thank you. We are really so grateful for all of the contributions of the South Asian community here in New Jersey and across the United States. And I wish you all a fabulous Festival of Lights. और अब आपको लिए चलते हैं उस अन्नकूट महोत्सव की झलकियों की तरफ, जिसका आयोजन जुड़ा हुआ है उस संदर्भ से जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज का पूजन करवाया और स्वयं गिरिराज रूप में प्रकट होकर जो कुछ व्यंजन अर्पित किए गए उनको स्वीकार किया। इस तरह से श्रद्धा को बढ़ाने वाला ये रसमय उत्सव दीपावली के ठीक बाद मनाया जाता है। और किस तरह इसकी शोभा थी इस बार वैष्णो टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में, आइए देखते हैं ये झलकियाँ।
जय श्री कृष्णा। तो गाड़ी में बैठ के मैं ताजा ताजा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अन्नकूट के दर्शन करके जब आप निकलते हो वैष्णव टेम्पल से तो एक विशेष प्रसन्नता होती है। बाद में मैंने कहा डाइल्यूट नहीं हो जाए, तो एक तो ठाकुर जी के दर्शन, उसके बाद में जो कीर्तन और वो जो पूरा प्रसंग है जिसमें इंद्र का जो मान है वो मर्दन करने के लिए ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान स्वयं गिरिराज जी के रूप में जो प्रकट हुए थे, वो सारा संदर्भ और इतने सारे भक्तों की उपस्थिति, वैष्णव कह दो, भक्त कह दो, और प्रसाद, आहा हा हा। तो प्रसाद का भी मैंने थोड़ा सा आनंद ले लिया है, तो इसलिए मेरी मुख्य जो प्रसन्नता है वो थोड़ी और बढ़ गई है। तो मैंने कहा प्रसन्नता वाले ये जो आनंद से भरे हुए और परंपरा के पावन प्रवाह से झिलमिल आनंद से आंदोलित करते हुए दृश्यों की तरफ लिए चलता हूं आपको अन्नकूट महोत्सव, वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क। आपुन पर्वत रूप आपुन पर्वत अरोगत आपुन पर्वत रूप अरोगत आपुन पर्वत रूप आपुन पर्वत रूप अरोगत आपुन पर्वत रूप अरोगत भारतीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जागृत रखने के लिए जहां भक्ति से जुड़े हुए केंद्रों की स्थापना करता रहा है, वहीं शास्त्रीय संगीत के पुरोधा मूर्धन्य संगीतकारों का भी यहाँ सत्कार होता रहा है। इस क्रम में वैदिक हेरिटेज में 5 और 6 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। उसके बारे में हमें बताया गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी ने, और इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होगी उस्ताद अमजद अली खान साहब की उपस्थिति।
आइए सुने ये बातचीत गुरु माँ से। एक तो आपके होने से यहाँ जो हनुमान बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति जो भक्ति के रस का और वर्धन और श्रद्धा का जो बढ़ना हुआ है, उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ इतने समीप से यहाँ न्यूयॉर्क में बैठकर सुनने वालों ने भी और जो मंदिर में विशेष जुड़े रहे हैं उनको एक उनके साथ अपनेपन का वो एक प्रसाद जैसा यहाँ भी मिला। इस क्रम में अब दीपावली के बाद जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो सौभाग्य है हमारा कि 5 और 6 नवंबर को यहाँ वैदिक हेरिटेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसमें भी एक ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनके नाम से भी शास्त्रीय संगीत के साथ एक विशेष ऊंचाइयाँ मिलती हैं और उन्होंने तो कई राग भी बनाए ऐसे और अपने वो पुत्र दोनों हैं उनके साथ आने वाले हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब की बात हो रही है, आप बताएं क्या कार्यक्रम 5 और 6 को हो रहा है? 5 और 6 को पहले तो कथक डांस की जो बहुत जानी मानी नीलिमा आज आ रही हैं और उनके बाद अयान और अमान को लेकर के अपने पुत्रों को लेके स्टेज पे खुद अमजद अली आ जाएंगे। अमजद अली जैसे मेरा बहुत बहुत रिश्ता गहरा है। मैं उनके घर भी कई बार गई हूँ और जब भी मैं जाती हूँ उनकी वाइफ तो पहुँची हुई कलाकार हैं ही, सुवा लक्ष्मी पंडित, और वैसे वो राजघराने के से है, राजकुमारी हैं। मेरा पता नहीं क्या है, अब मुझे आप पूछ रहे हैं तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ मैं किसी के बारे में कैसे कुछ कहूँ, जबकि सभी मेरे इतने घनिष्ठ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब को कहूँ तो वो तो जब मैं जाती थी तो मेरे साथ साथ रहते थे। जैसे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू उनकी ऊंचाइयों को बताना और अपने आप को छोटा करके बताना, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें। पर मैं ये बात आपको सच कहती हूँ, एक क्लास मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, मैंने सिर्फ धूम धड़ाका किया, पर इन लोगों की बड़ी कृपा रही है मुझ पे और इन सब ने मुझे बहुत प्यार किया। और ये जहाँ भी है और जो भी है बहुत भगवान ने सुखी रखे। मैं यही दुआ करती हूँ कि जहाँ भी है वो मुझे भी आशीर्वाद दे। तो मैं गुरु माँ के साथ में ये याद कर रहा हूँ, एक तो मुझे भी यहाँ पर मंदिर में भी पंडित जसराज जी की उपस्थिति याद आई। फिर ये है कि जो एक समन्वय का भाव होता है, जो संगीत के साथ भी जुड़ा है, भक्ति के साथ भी जुड़ा है, उससे जो एक अपनापन आता है, जो सबको एक कर देता है, उसकी जो सौरभ है, उसकी जो सुवास है, वो गुरु माँ के व्यक्तित्व से होते हुए जिस तरह सबको जोड़ती है, उसका आनंद उनकी उपस्थिति में भी है। और विशेष करके जो 5 और 6 नवंबर के कार्यक्रम है उसमें जो एक साधना की परिपक्व अवस्था तक पहुँचे हुए अमजद अली खान साहब जो परफॉर्म कर रहे होंगे अपने दोनों पुत्रों के साथ में, तो उसका एक विशेष अनुभव प्राप्त करने का भी ये अवसर है। तो और माँ आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ तो ऐसे हैं हमारे दर्शकों में से जो वैदिक हेरिटेज मंदिर भी आते रहे हैं और जिन्होंने ये पंडित जसराज जी ऑडिटोरियम देखा भी है, कुछ नए लोग भी जो आपको अभी सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो भक्ति पाइए, और भक्ति को करना है तो संगीत में जाइए, क्यों संगीत के बिना भक्ति अधूरी और भक्ति के बिना संगीत अधूरा। मैं यही कहूँगी। तो भक्ति और संगीत दोनों का संगम गुरु माँ की सन्निधि से और आशीर्वाद की जो एक ताल होती है वो जीवन में जो माधुर्य बढ़ा देती है, उसका अनुभव जो गुरु माँ के संपर्क में रहे उनके साथ रहा ही रहा है। और हनुमान जी की कृपा से जो शरीर में शक्ति का अभाव है वो कहीं पता नहीं लगता है। और आपने इतना समय बातचीत के लिए निकाला है, और मैं आपसे भी तो आग्रह नहीं करूँगा, पर अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं
भी कुछ लोकगीत भी आप गाती रही हैं और राजस्थानी गीत विशेष करके आपके बहुत प्रिय रहे हैं और जीवन में रस बना रहे, इसके लिए क्या संकेत? मैंने भी जैसे कहा ना कि मेरी फैमिली में ही ये क्या कहते हैं, डांस है, संगीत है, पर सभी क्लासिकल। मेरे भाई लोग अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, बाकी वो लोग भी सब हिंदी फिल्मी संगीत, वो उनको तो फिल्मी संगीत का शौक़ था, पर मेरे को क्लासिकल का लगा, क्योंकि पंडित जसराज जी की मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है और उसी की बदौलत ये सब मुझे उपलब्धि हुई। और आज जो कुछ भी हूँ, या तो मैं पंडित जसराज जी की बदौलत हूँ और या मेरे गुरुदेव की बदौलत हूँ, आचार्य विश्वनाथ देव शर्मा, जो कि मेरे ज्योतिष शास्त्र के वो प्रकांड पंडित थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने जो कुछ पाया, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। मुझे भी अपने गुरु महाराज से उन्हें 2 पंक्तियाँ याद आ गई, वो भी उन्होंने किसी का कोट कर रहे थे शायद। वो कहते हैं कि, और ये पंक्तियों तक जाने से पहले जो कुछ आपने अपने जीवन में पाया और उसका वितरण किया, वो आप हनुमान जी की हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं अपने शब्दों में अगर कहें तो, समर्पण से। डस्ट बन गई, मैं उनके चरणों की धूड़ बन गई। तो हम किसके होते हैं वो हमारा परिचय बनाता है। तो पंक्तियाँ वो ऐसी थी कि हम थोड़ा हंस के सीखे हैं, हम थोड़ा रो के सीखे हैं, पर जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। तो हम उसके हों जिसके होने से हमारा आत्मा का उत्थान हो, ऐसे प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में, विशेष रूप से गुरु माँ की सन्निधि में रखते हुए, क्योंकि वो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो आपके चरणों में भी प्रणाम, बहुत बहुत आभार है आपका। तो आपने जो समय दिया, मुझे इस काबिल समझा, मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, और एक गुरु होने के नाते आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि जिस काम को आप कर रहे हो, ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, हमसे वो करवा रहा है, आपसे भी वही करवा रहा है, आप भी वो कर रहे हैं। बाकी आप इस लगन पे कभी भी टूटिएगा मत, कभी भी इसको छोड़िएगा मत। 1000 बाधाएं आएंगी, पर इससे जुड़े रहिएगा, यही कहूँगी। और आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिला दें कि आप मित्र बने हमारे फेसबुक पेज पर, सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को, और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए फिर एक बार आपका आभार। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।